एक बार रिकॉल कर देते हैं. In last session what we did, we have a MNIST data set, like handwritten digits data set, and for that we have 55,000 multiplied by 786. Okay, 784, sorry. 784 means what? This is nothing but a feature value. 784 is nothing but a feature value. So ये मेरा पहला layer था. So this is my first layer, जिसमें 784 features हम enter करेंगे. And in output layer we had actually like in output layer हमारे पास क्या चीज available थी guys? Output में हमारे पास क्या था? We have 10 different classifications. Yeah, 0 to 9. That's 10 different classifications. So what we need, हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए था उस चीज के लिए, कितने weights हम लोग को like ट्रेन करने थे, कितने weights, कितने bias values ट्रेन करने थे. So यहाँ पे 55,000 को मैं एक बार remove भी कर दूं. So I have actually 784. That's nothing but a like feature value, and 10 is nothing but expected output value. So no hidden layers are there. तो मुझे यहाँ पे कितने weights चाहिए? Yes, 784 multiplied by 10. Okay, and how many bias values we required? Bias values we required. कितने bias values चाहिए? 10 bias values. So finally total हम लोग को कितना चाहिए था? Total values are 7850. Okay, total हम लोग को चाहिए था 7850. This is the total requirement. इतने variables को या इतना data मुझे train करना है. Okay, so what we did, हमने weights and bias के लिए क्या किया था? Weights and bias के लिए हम लोगों ने क्या काम काज किया था? Weights and bias के लिए हम लोगों ने variables बनाए थे. And 784 are nothing but an input value, so it's a feature value. So ये मेरा x था, तो उसके लिए हम लोगों ने placeholder set किया था. And guys, y in the sense actual output, क्योंकि हम लोग को loss function भी like चाहिए था, so minimize करना था loss को. So loss minimize करने के लिए actually मुझे predicted value और actual value दोनों चाहिए. Then after हम लोग कुछ square loss function use कर सकते हैं. We can just use either of the loss function we can just use. Okay, तो loss function, absolute loss function, square loss function, और अगर softmax use करते तो entropy. Okay, तो इसमें से कुछ भी use करके हम लोग को loss function decrease करना. So what we have to do, ये सब कुछ काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? First of all we have to create a graph. First of all we have to create a graph. उसके बाद session नाम के सेशन के ऑब्जेक्ट के थ्रू रन फंक्शन कॉल करेंगे. वी विल जस्ट पास द रूट वेरिएबल इन द सेंस जो भी ग्राफ या ट्री बना उसका जो भी रूट नोड है, वी विल पास दैट वन एज एन आर्गुमेंट. एंड जितने भी प्लेस होल्डर्स है उनकी वैल्यू हम फीड कराएंगे बाय यूजिंग द डिक्शनरी फीडिंग टेक्निक. और एंड फाइनली लाइक आफ्टर सम इटरेशंस वी विल जस्ट फेच द आउटपुट इन आवर वेरिएबल. सो दैट्स द टेक्निक. इस तरीके से कुछ कामकाज करने वाले हैं. बट नाउ इन दिस सेशन ये हमने काम कर लिया था, दैट वी ऑलरेडी डिड. And now in this session what we want to learn now, अब हम लोग को काम करना है MLP with multiple hidden layers. So guys, what we will do right now, we will just introduce two hidden layers. Same example. Okay, same example. अब मुझे क्या काम काज करना है? This is my first input layer. This is my input layer. मुझे एक hidden layer चाहिए. So this is my first hidden layer. And after that I want to introduce one more hidden layer. And finally I will have a output layer. Okay, finally I will have an output here. So मुझे इतना पता था. Yeah, 1 minute. So this is my second hidden layer, and finally I will have actually output. So मुझे इतना पता था. मैं same MNIST data set के साथ काम काज कर रहा हूँ. So 10 labels are there. So here I need 10 neurons. Okay, यहाँ पे मुझे 10 neurons चाहिए. And input layer में मेरे पास actually 784 features होंगे. 784 features. So now how many neurons we have to like add in this hidden layer? So we can right now हम लोग सिर्फ assume कर रहे हैं. So in this example मैंने यहाँ पे like पहले hidden layer में 128, second hidden layer में 32. पहले में 128. Here I just set 128 neurons, and here I just introduce actually 32 neurons. इस तरीके से मैं कुछ work कर रहा हूँ. Okay, so guys, now how many weights we require? Can you please tell me कितने weights की जरूरत पड़ेगी? So यहाँ पे कितने weights चाहिए होंगे? ये लेयर में कितने weights चाहिए होंगे? 784 into 128. 128. 784 multiplied by 128 plus 128 bias. Yes. Plus 128 bias. What about this one? 128 into 32 plus 32. Plus 32. What about this one? 320 plus 10.
320 plus tons. So this much of weights and bias we have to learn. तो इतने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे. So but obvious हम लोग इसके लिए मैन्युअली कोडिंग तो नहीं करेंगे. We will just use some inbuilt TensorFlow like algorithms we will use. So first of all जितनी चीजें हम लोग को यहाँ चाहिए उनको डिक्लेयर कर देते हैं. पहले ग्राफ बना देते हैं. एंड गाइस जो लास्ट में हम लोगों ने वर्क किया सेम वर्क यहाँ यूज कर रहे हैं. वहां पे कोई हिडन लेयर नहीं था, यहाँ पे हिडन लेयर है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं. स्टिल डीप लर्निंग में हम लोग ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. बट राइट नाउ व्हाट वी विल डू कि जो भी इक्वेशंस है उसके लिए ग्राफ बना देते हैं. वेरिएबल्स ट्रेन जहां पे डेटा ट्रेन करना है उसके लिए वेरिएबल्स बना देते हैं. जो हम लोग इनपुट करना चाहते हैं उनके लिए प्लेस होल्डर डेवलप कर देते हैं. जितने कांस्टेंट्स है उसके लिए आइदर कांस्टेंट बना दीजिए और यू कैन जस्ट यूज द पाइथन वेरिएबल्स. तो मैं मिक्स कोड लिख रहा हूँ, सिर्फ टेंसरफ्लो नहीं पाइथन कोड भी इंट्रोड्यूस करेंगे. सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट सम लाइक रिक्वायर्ड थिंग्स. सो sys TensorFlow dataset like MNIST dataset, then TensorFlow time and math. Fine. Now we know there are 10 number of classes. So हम लोगों ने पहले से number of classes की value 10 कर दी. Okay, image size we know that's 28. Image size we know that is 28. So pixels will be actually 28 by 28. So otherwise you can say that like it is nothing but in shape of X. Okay, training shape. ट्रेनिंग डेटा सेट. ट्रेनिंग में हमारे पास दो चीजें थी, इमेजेस एंड लेबल. ट्रेनिंग में हमारे पास दो चीजें थी. एक बार अगर हम रिकॉल करें हमारा प्रीवियस कंसेप्ट, ओके लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो देखा था उसको रिकॉल करें. सो हियर वी हैव दैट इज एक्चुअली दिस इज ट्रेनिंग डेटा सेट. सो mnist train.images, mnist train.images.shape. सो ये एक्चुअली मैंने थोड़ा चेंजेस करके रन किया था. जस्ट इग्नोर दैट. यहाँ पे 55,000 था, 55,000 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, दैट इज एक्चुअली 784. Okay, that is actually 784. So fine. So that's nothing but like 28 multiplied by 28. That is pixel size, number of pixels in image. Otherwise, you can say that feature values, number of features. And finally, we just in last session we just find out one solution because there are 55,000 records. तो हम लोग batch wise अपने एक batch wise अपना inner loop execute करने के बाद हम अपने weight को update कर रहे थे average loss function के साथ. So that's actually 100. Batch wise हमने 100 रखा. हिडन लेयर 1 में मेरे पास 128 न्यूरॉन्स होंगे. हिडन लेयर 2 में मेरे पास 32 न्यूरॉन्स होंगे. एंड लर्निंग रेट मैंने 0.01 रखा. नाउ व्हाट अबाउट मैक्स स्टेप्स, मतलब आउटर जो लूप होगा उसको मैं 5000 टाइम्स एग्जीक्यूट करूंगा. आउटर लूप को मैं 5000 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूं. व्हाट अबाउट दिस लॉग डायरेक्टरी? सो राइट नाउ मुझे क्या करना था, आई वांट टू जस्ट स्टोर माय मॉडल. मुझे अपना मॉडल भी स्टोर करना है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डू एंड दैट इज वन मोर थिंग आई वांट टू डू दैट इज एक्चुअली मुझे लॉग्स भी जनरेट कराने. Okay, I want to do two things like logs भी जनरेट कराने हैं और मॉडल भी स्टोर करना है. Okay guys, अभी राइट नाउ मेरे पास इसका आउटपुट स्टोर्ड नहीं है. सो राइट नाउ आई कैन नॉट शो कि भाई ये डेटा कहाँ पे स्टोर हुआ है. और मैं फाइल डाउनलोड नहीं करना चाहता बिकॉज डेटा सेट डाउनलोड होने में बहुत टाइम चला जाएगा. ओके, सो यहाँ जितना आउटपुट है उतना हम लोग एक बार देख लेते हैं. एंड व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे POP कांसेप्ट्स यूज किया है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो जो छोटे छोटे टास्क है उनको हो सके उतना डायनेमिकली बनाने के लिए फंक्शंस बना दिया विद आर्गुमेंट विद रिटर्न वैल्यू. So now how many placeholders we require? यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे? So but अब हम लोग x की वैल्यू इनपुट करेंगे एंड y की वैल्यू इनपुट करेंगे. बट अब now the thing is like x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हम लोग एक बार इनपुट करेंगे. एंड now what about this inner layers? What about this inner layers? इनके लिए x and y कौन देगा? So you have not to worry. ये सब TensorFlow खुद कर लेगा. Okay, by using back propagation or perceptrons, whatever the algorithm you will choose, वो खुद कर लेगा. You have not to worry. Okay, हम लोग तो gradient descent classifier यूज करने वाले हैं. So we have not to worry about that. हम लोग को सिर्फ क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? We need this x. We have to just fit this y. तो हम लोग को दो प्लेस होल्डर की जरूरत है, x and y. You can say that ट्रेनिंग टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो that is nothing but images. So इसको हम लोग images बोलते हैं. Okay, as per the data set, this is nothing but a labels. That is labels. तो ये दो चीजें हम लोग as a placeholder. But I do not want to manually clear like मैन्युअल इन द सेंस जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा तब एक्चुअली मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसमें सिर्फ मैं साइज दूंगा एंड इट जस्ट रिटर्न लाइक प्लेस होल्डर्स. सो व्हाट वी डिड, प्लेस होल्डर इनपुट्स एंड बैच साइज. सो राइट नाउ बैच साइज क्लियर है गाइस. अगर मान लीजिए मैं ये प्लेस होल्डर की बात करूं, ये एक प्लेस होल्डर में इनपुट करूं, देन व्हाट विल बी द साइज? मान लो बैच साइज मेरा 100 है. सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 784, 100 मल्टीप्लाइड बाय 784, दैट विल बी द साइज. So what I'm doing, मैंने यहाँ पे लिखा tf.placeholder, data type will be float 32 in the sense 4 bytes of float, and shape is a batch size comma image pixels. Okay, what is the batch size? Batch size जो भी आप पास करें, but हम लोग batch size पहले से फिक्स कर दिए
तो जब फंक्शन कॉल करेंगे at that time we will just pass 100 actually. So that is 100 and image pixels, that is actually image size multiplied by image size, that is 784. So ये हो गया x. In short, image placeholder. So here I have a name that is images placeholder. Images placeholder. In the same way, label placeholder, same functionality. Integer 32 क्यों ले रहे? Because right now data set load करेंगे ना, at that time हम लोग like one hot true नहीं लिखेंगे. So in short, here we just did one thing, that is 1 underscore hot equals to true. So what did that? उन्होंने क्या काम काज किया था? अगर 1 hot true लिखते तो 1 hot true लिखने के टाइम पे क्या काम काज होगा guys? Anyone? Yes, विजय सर, मौलिक सर. हमारे 10 लेबल्स थे. So क्या करेगा? 10 लेबल्स को 10 में कन्वर्ट कर देगा. 10 मतलब like if your output is 4, तो 5th कॉलम में 1 होगा, बाकी सब कॉलम में 0. अगर आउटपुट 0 है, अगर लेबल्ड वैल्यू 0 है, इमेज का लेबल्ड वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट कॉलम में 1, रिमेनिंग विल बी द 0. दैट इज 1 हॉट ट्रू. बट राइट नाउ हम डेटा सेट को लोड करने के लिए 1 हॉट ट्रू नहीं लिखेंगे. दैट मींस व्हाट? लाइक जहां पे जो भी वैल्यू होगी वहां पे वो लिखा होगा 4, अदरवाइज 3, अदरवाइज 7. इन द सेंस 10 लेबल्स के अंदर हमारे पास जो भी आउटकम होगा वहां पे वो वैल्यू लिखिए. दैट्स इट. ओके, सो राइट नाउ फॉर दैट मैं बैच साइज के हिसाब से मतलब 100 by 1 का एक मेमोरी लोकेशन. 100 by 1 इन द सेंस व्हाट? लाइक अगर मैं यहाँ पे 100 रिकॉर्ड्स इनपुट करूं, 100 रिकॉर्ड्स इनपुट करूं, तो फर्स्ट रिकॉर्ड का आउटपुट मान लो 5 आया, प्रेडिक्टेड वैल्यू. सेकंड रिकॉर्ड का वैल्यू एक्चुअली 4 आया, थर्ड रिकॉर्ड का वैल्यू 5 आया, फोर्थ रिकॉर्ड का वैल्यू 4 आया, फिफ्थ रिकॉर्ड का वैल्यू 4, then 3, then 2, then 1, then 3 and something like that. How many values we will have? We will have 100 values. तो इस 100 वैल्यूज के साथ मुझे this is consider this is y caret या y hat. तो मेरे पास y भी कितना होना चाहिए? It will be a size of 100. Okay, it will be the size of 100. तो जब मैं y को डेवलप करूं, so it is nothing but 100 by 1. Otherwise you can say that it's a vector of size 100. So that मैंने उसका placeholder बनाया with the size of 100. That's it. And we will just return that. So that is pretty simple function. We just create two placeholders as for the x and y. Now this is nothing but a fill fit dictionary. So now like fill fit dictionary यहाँ पे इसलिए लिया because right now in this program हम लोग तीन चीजें यूज करने वाले. ट्रेनिंग डेटा सेट, वैलिडेशन डेटा सेट एंड टेस्टिंग डेटा सेट. तीनों चीज का यूज करेंगे. ओके, ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन. जो भी डेटा सेट होगा, जो भी डेटा सेट यहाँ पे पास करेंगे वो डेटा सेट, और उसमें से दो चीजें, इमेजेस एंड लेबल्स. बिकॉज इमेजेस टेस्टिंग के लिए भी अलग हो सकती है, बट ऑब्वियस टेस्टिंग के लिए अलग डेटा होगा मेरे पास, लाइक ट्रेनिंग के लिए अलग होगा, वैलिडेशन के लिए अलग होगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग ये डेटा सेट में से बैच साइज 100 तो नेक्स्ट बैच फेच कर, व्हाटएवर द बैच उनके पास होगा उसमें से नेक्स्ट बैच फेच कर, नेक्स्ट बैच. So that will be my images feed and label feed. Okay, images feed and label feed. Now what about this images underscore pl, like labels underscore pl? So that's nothing but a variable name. That's in short, that's nothing but in your placeholder name. That is nothing but in your placeholder name. So ये मुझे dictionary बना के return करेगा. Feed underscore dictionary colon. This is the first value of the first placeholder value, and ये उसका first placeholder name, ये उसका value. Second placeholder name, that is the name of value of that value for that placeholder. So is this clear? Maulik sir, Vijay sir, ये दो function समझ में आया? Yes sir. Fine. So now the next one is okay. Do eval को हम last में touch करेंगे, अभी उसको नहीं देख रहे. Okay, so अभी fine. Let me come to this inference function. So here what we did, अब हम लोग actual task पे आ जाते हैं. Like here I have 1 minute. Let I just remove some things. Fine. So right now मेरे पास कुछ hidden layers है. Okay, so like मुझे अब ऐसा करना था कि इस hidden layer से इस hidden layer तक कितने weights को train करना है and कितने bias को train करना है. So in short मुझे integration function चाहिए. So my integration function will be like wx plus b. Okay, मेरा हम लोग integration function ये यूज करते थे, wx plus b. प्लस मुझे एक्टिवेशन फंक्शन चाहिए. यू कैन जस्ट यूज रेलू, यू कैन जस्ट यूज एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन, दैट्स योर चॉइस. आप कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो. यू कैन यूज रेलू, यू कैन यूज सिग्मॉइड, यू कैन यूज स्टेप फंक्शन, दैट्स योर चॉइस. ओके, सो गाइस मैं यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूँ? बिकॉज एज पर द लाइक ये जो 32 वाला जो मेरा हिडन लेयर है, सेकंड हिडन लेयर है, उसका इनपुट फर्स्ट हिडन लेयर का आउटपुट होगा. तो फर्स्ट हिडन लेयर का आउटपुट एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. फर्स्ट हिडन लेयर का आउटपुट एक्चुअली एक्टिवेशन फंक्शन लाइक एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. तो मुझे दोनों चीज चाहिए. सो नाउ लेट मी क्रिएट अ ग्राफ.
ओके हम ग्राफ बनाते हैं, पहले लेयर के लिए ग्राफ बनाते हैं, सेकंड लेयर के लिए ग्राफ बनाते हैं एंड आउटपुट लेयर के लिए ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ सेंस नोड्स बना लेते हैं. ओके सो प्लेस होल्डर्स आर रेडी. ओके वेरिएबल्स बनाने बाकी है बट वेरिएबल्स अब बनेंगे. कौन कौन से वेरिएबल बनेंगे? बट ऑफ दिस w and d. ओके w in the sense weights and another one is nothing but a b that means bias. ये दो चीजें अब डेवलप होगी. So now let us just pass the images. Hidden input 1, hidden input 2. Hidden input 1, hidden input 2 in the sense what? How many hidden, like in a first hidden layer, how many neurons you have? So I will just pass 128 and as a second argument I will pass actually 32. And what about images? Images in the sense this one. Images in the sense this one. Because मुझे x की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ x चाहिए. Because weight पास करना था ना हम लोग को, ये weight डेवलप करना है. Okay, ये weight कितने का मैट्रिक्स होगा? ये weight कितने का मैट्रिक्स होगा? तो बट ऑब्वियस वी विल से ओके सॉरी कितने का वो एक्चुअली या सॉरी फाइन दैट्स अ मैट्रिक्स ओनली. तो ये कितने का लाइक डायमेंशन क्या होगा, इसका शेप क्या होगा? सो इट डिपेंड्स ऑन x. उसका इनपुट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन x. इट डिपेंड्स ऑन आउटपुट. इसका आउटपुट क्या है? तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते थे. ओके व्हाट अबाउट दिस वन? मान लो यहाँ पे मेरे पास w2 था. देन व्हाट विल बी द शेप? शेप किसके ऊपर डिपेंडेंट है? शेप इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके यहाँ पे अगर w3 लूं then it depends on actually this two. वो इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है. But output we know that's 10. तो इसको अगर पास नहीं करते then it's fine. बाकी सब जगह पे मुझे x की डायमेंशन भी पास करना पड़ेगा. So here what we passed images, we passed hidden 1 units, hidden 2 units. Hidden 1 units in the sense what? It will be 128. Hidden 2 units will be actually 32. Okay, so guys, tf.name_scope it just used to provide the name of the like one layer. Okay, so here what we did, हम कुछ वेरिएबल्स बना रहे हैं. उस पर तब हम लोग को वेरिएबल्स की जरूरत है, उसका नाम वेट्स रख देते हैं और एक वेरिएबल बनाएंगे दैट इज एक्चुअली बायस. ओके वेरिएबल्स बनाते हैं वेट एंड बायस. सो tf.variables and the shape of that variable will be image pixels and hidden unit 1. The shape of that actually variable, it will be actually image pixels in the sense what? 784 and weight and the first hidden unit that is actually 128. What about this one? ये weight 2 के लिए क्या होना चाहिए? Weight 2 के लिए क्या होना चाहिए? 128 and 32. So एक बार ये second width block में देखते हैं. Weights is equals to tf.variable and here we just pass hidden unit 1, hidden 1 units and hidden 2 units. Hidden 1 units की वैल्यू क्या होगी? It will be 128. Hidden 2 units की वैल्यू क्या होगी? It will be 32. It will be 32. So that's that. Now what about the next thing? हम लोग अगर आउटपुट लेयर की बात करें, अगर हम आउटपुट लेयर की बात करें या सॉफ्टमैक्स लीनियर की बात करें, नाम कुछ भी दे सकते हैं. तो उसमें वेट्स क्या होगा? tf.variable, shape will be hidden 2 units and number of classes, that is 10 number of classes. So I hope यहाँ पे weight वाला concept clear है. But now what about this one, sir? ये क्या लिखा है? What is that? tf.truncated normal standard deviation 1.0 divided by max square root of float images underscore pixels. What is that? So guys, tf in the sense that is TensorFlow. Truncated normal in the sense what? कि हम लोग by default weight की वैल्यू रखे क्या? जो हम लोग एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, okay, something by something, जैसे image pixels by hidden units वाला एक हम लोग मैट्रिक्स डेवलप कर रहे हैं. But what will be the size of this? Sorry, what will be the default value? So you can just use any value. But generally हम लोग वैल्यू कंसीडर करने के लिए, like उसका वैल्यू कुछ एज्यूम करने के लिए स्टार्टिंग वैल्यू के लिए हम लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं कि नियर अबाउट 0 होना चाहिए या 0 to 1 के इन बिटवीन होना चाहिए, whatever, कुछ ना कुछ हम लोग फंक्शनलिटी लगते हैं. So what I did, मैंने उसका by default normalization function मैंने यूज किया. Like just divide the value, जो भी आप एक वैल्यू एज्यूम करें उसको एक्चुअली सभी वेट्स में डिवाइड कर दीजिए, इक्वली डिवाइड कर दीजिए. सो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ट्रंकेटेड नॉर्मल, दैट्स अ नॉर्मलाइज्ड फंक्शन. स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉर्मलाइजेशन. सो दिस इज द फंक्शन और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मैंने पास की 1.0, मतलब 1.0 के नियर अबाउट सबके सब वैल्यूज रहेंगे. डिवाइड बाय हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? तो इमेज पिक्सेल्स आर द नंबर ऑफ रोज एक्चुअली. So मैंने max square root of float image pixels किया. Okay, same things I just pass over, like same thing I just use in each and every like tf.variable. So यहाँ भी same चीज 1.0 and max square root and hidden 1 units. Here I just use hidden 2 units because it's nothing but a number of rows. What about bias? So bias में by default value 0 रखती है. Okay, and the size will be actually hidden 1 units because first layer के लिए bias की value क्या होगी? So it will be 128. सेकेंड हिडन लेयर के लिए बायस की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 32. थर्ड लेयर के लिए बायस की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी 10.
ओके तो फर्स्ट हिडन लेयर के लिए बायस की वैल्यू 128 है. 128 मतलब हिडन 1 यूनिट्स, हिडन 1 यूनिट. सेकंड वन के लिए हिडन 2 यूनिट्स, थर्ड वन के लिए नंबर ऑफ क्लासेस. So that's that. So that's actually hidden layer variables. Now finally मुझे अपना फंक्शन चाहिए. So इंटीग्रेशन फंक्शन का रूल क्या था गाइस? मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा क्या था? wx plus b and wx plus b and उसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन फायर करेंगे. So whatever the activation function you want to use, you can. So here I have wx in the sense weights into images, weights into images, images in the sense that's my input, that is x, you can say that it is my x. So x into w. So matrix multiplication x into w plus bias, plus bias. Okay, so matrix multiplication images into weights plus bias. So this is my integration function. अब ये integration functions, guys, ये integration functions में किसको पास कर रहा हूँ? मैं ReLU को पास कर रहा हूँ. So here I just use ReLU as an activation function. You can use anything. आप अपना sigmoid function भी use कर सकते हो. 1 plus 1 upon 1 plus e dash 2 minus net. What is that net? That is actually wx plus p. Okay, so अब इसका जो आउटपुट आएगा hidden 1, that I will use over here. पहले लेयर का जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा, यहाँ पे जो आउटपुट आएगा, that I will use as an input to the next one. Okay, तो ReLU function in the sense activation का जो आउटपुट आ रहा है, that will be the feature value for the next layer. So here we will just use hidden 1. In the similar way, हम लोग इसका आउटपुट hidden 2 that we will use over here. Okay, and here guys, here we are not using the ReLU because that's the output. यहाँ पे जो आएगा, that is the output. Okay, and we are not using actually activation, sorry, अपना like softmax function also. तो यहाँ पे आउटपुट को as it is रख रहे हैं, we will use softmax. हाँ, हम लोग यहाँ softmax use करेंगे because we will have actually 10 values because यहाँ पे 10 न्यूरॉन है, सबकी वैल्यूज मिलेगी. ओके, हम लोग को उसमें से एक ही वैल्यू चाहिए. सो 10 न्यूरॉन्स वी हैव. तो अभी राइट नाउ हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसको लॉजिक्स के नाम से सेव कर रहे हैं. सो इज दिस फंक्शन क्लियर गाइस? हम लोग को x पास करना है, फीचर वैल्यू इन द सेंस फर्स्ट प्लेस होल्डर हमको पास करना है. यूनिट्स कितने चाहिए आपको, हिडन लेयर में न्यूरॉन्स कितने चाहिए वो आपको पास करना है. रिमेनिंग थिंग्स इट विल रिटर्न. फाइन. यू कैन इवन दो यू कैन पास दिस फंक्शन आल्सो. आप ये फंक्शन भी पास कर सकते हो अगर एक्स्ट्रा कुछ रखना हो. तो आप एक यूनिवर्सल चीज बना रहे हो कि दो हिडन लेयर के साथ मुझे एक यूनिवर्सल चीज बनानी है, तो एक्टिवेशन फंक्शन भी मैं पास करूं, वही यूज हो. यू कैन पास दैट आल्सो. तो एक्टिवेशन फंक्शन भी आप पास कर दीजिए, तो ये यूनिवर्सल चीज बन जाएगी जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं. मतलब लाइक एज पर लाइक सुटेबल थिंग्स. ओके, इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Now the next one is loss function. So loss is nothing but a loss function. हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? We can just use like square list function हम लोग यूज कर सकते हैं. y minus y correct whole square. Otherwise अगर softmax यूज करते हैं then entropy यूज कर सकते हैं. So guys generally binary classification approach हो, binary classification problem हो, an absolute function, absolute loss function, otherwise like list square function हम लोग generally use करते हैं. But अगर multi classifier problems है then entropy functions generally used. So here we used like entropy functions. And for that, first of all, मुझे actually softmax apply करना पड़ेगा. कौन सी दो चीज में मुझे softmax apply करना है? So as we know, images is my input, labels are my output. Labels, y को हम labels बोलेंगे. तो ये जो input है उसका output क्या आया था? Predicted value क्या? That is logits. Okay, तो ये function के अंदर loss function में मैं दो चीजें पास करूंगा, logits and labels. So this is actually predicted value, this is predicted value, and this is nothing but an actual value. So ये दो चीजें हम लोग हमारे एंट्रोपी फंक्शन को दे देते हैं. स्पार्स सॉफ्ट क्रॉस एंट्रोपी विथ लॉजिट्स, इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, बट दैट इज नथिंग बट एन सॉफ्टमैक्स प्लीज सॉफ्टमैक्स प्लस एंट्रोपी. ओके, सो हियर आई जस्ट यूज लाइक लेबल्स एंड लॉजिट्स. एंड यहाँ पे हमने पहले से उसको बोला था कि मुझे क्रॉस एंट्रोपी यूज करके दीजिए, क्रॉस एंट्रोपी. Okay, we will discuss after this session. We will just discuss that what is X entropy. But right now, just consider that is nothing but a loss function. और वो मुझे क्या रिटर्न करेगा? It returns the cross entropy. It will returns the cross entropy. But यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? Labels equals to tf dot to integer of labels. हमने type casting किया. That's that. Fine. Now what is my next requirement? जो भी cross entropy मुझे मिला, मुझे उसका average value चाहिए. Because मुझे single value चाहिए थी. ये एक्चुअली वेक्टर देगा 10 का. सो व्हाट वी डिड, रिड्यूस मीन. ओके, रिड्यूस मीन, हमने क्रॉस एंट्रोपी का रिड्यूस मीन किया, मतलब उसका लाइक मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू फाइंड आउट किया, एंड वी विल जस्ट रिटर्न दैट. सो ये फंक्शन को हमको क्या चीज देनी पड़ेगी? प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू. व्हाट इट रिटर्न्स? इट विल रिटर्न अ लॉस वैल्यू. ओके, लाइक एक रिकॉर्ड के लिए प्रेडिक्टेड वैल्यू थी और ये हमारे
लाइक एक्चुअल वैल्यू थी, देन दिस इज द लॉस। अदरवाइज पूरा बैच साइज में क्या लॉस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन जस्ट अपडेट द, हम लोग बैक प्रोपोगेट करके वेट्स और बायस को अपडेट कर सकते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट द ट्रेनिंग पार्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू इन ट्रेनिंग पार्ट। सो ट्रेनिंग पार्ट में हम लोग को क्या काम काज करना होगा, वी रिक्वायर्ड अ लॉस। So what's the loss? Like forward propagation में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बैकवर्ड प्रोपोगेशन में, मतलब बैक प्रोपोगेशन में, फॉरवर्ड में हम लोग को कोई प्रॉब्लम था, बैक प्रोपोगेशन में हम लोग को ट्रेनिंग चाहिए, W and B को अपडेट करना पड़ेगा। So here we have to pass loss and we have to pass learning rate, that is eta value. Okay, आप याद करिए WN plus 1 is equals to WN plus eta times loss. Okay, WN plus 1 in this is new value of W is equals to existing value or old value plus eta times loss value. So we require loss function as well as like eta value we require. Okay, so what we are doing, यहाँ पे हम लोग एक simple summary scalar develop कर रहे हैं. What is that? 2 मिनट उसको भी देखते हैं. But now मुझे gloss को update करना था. Then what we required? We required actually gradient descent optimizer. So it returns an optimizer object, gradient descent optimizer, and here we have to pass actually learning rate. Here we have to pass actually a learning rate. Now finally the next thing is let me create a global steps. Now what is that? एक वेरिएबल है, जैसे प्लेस होल्डर अगर हमने बनाया तो हम लोग को उसकी वैल्यू फीड करनी होती है, कांस्टेंट बनाया वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल बनाए वैल्यू चेंज होगा। अब मुझे क्या करना था, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग हर एक स्टेप को, जैसे एक बैच साइज लिया 100 100 100 100, तो बैच साइज के बाद मुझे अपना वैल्यू फाइल के अंदर लॉग्स के अंदर स्टोर करना है, लॉग्स के अंदर मुझे वो वैल्यू स्टोर करना है। Okay, so for that what we did, यहाँ हमने एक summary नाम का क्लास यूज किया, f.summary.scalar, तो ये लॉस वैल्यू जनरेट करेगा जिसका नाम लॉस रहेगा। ओके, समरी में मुझे लॉस वैल्यू को एज ए लॉस कॉलम, मतलब एज ए लॉस लेबल स्टोर करना है समरी के अंदर। जब मैं लॉग के अंदर स्टोर करूंगा सर, आई विल डायरेक्टली से दैट ओके प्लीज स्टोर द समरी। तो यहाँ पे मैंने एक जो लॉस था, जो भी मेरा लॉस था फर्स्ट इटरेशन में, सेकंड पास में, थर्ड पास में, जो भी मेरा लॉस वैल्यू था उसका मैंने टाइटल दिया दैट इज लॉस। So that is tf.summary.scalar loss, that is your label, this is your variable. And guys, अब जितने steps हुए मुझे अंदर लिखना था, step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 and something like that. तो हर एक पास में, हर एक बैक प्रोपोगेशन में मुझे स्टेप की वैल्यू चेंज करनी। सो इन फ्यूचर जब भी मैं डेटा लूं तो मुझे पता चले कि ओके इतने स्टेप्स में ये इंप्रूवमेंट आया, ओके इतने स्टेप्स में ये इंप्रूवमेंट आया। सो बट गाइज अब ये मुझे लर्न नहीं करना, मुझे ग्लोबल स्टेप्स को इंक्रीमेंट करना है, लर्न नहीं करना है, ओके ट्रेन नहीं करना। सो दैट मैंने यहाँ लिखा ट्रेनेबल इक्वल टू फॉल्स, ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, एंड इस वेरिएबल का नाम मैंने यहीं पे पास कर दिया, दैट इज ग्लोबल स्टेप। तो जब आप लॉग फाइल्स देखोगे देन यू विल गेट एक्चुअली ग्लोबल स्टेप्स इक्वल टू सम। ओके, और हम लोग ऑप्टिमाइजर को ही बोल देते हैं, ओके प्लीज मिनिमाइज द लॉस, दिस इज माय नेक्स्ट फंक्शन, प्लीज मिनिमाइज द लॉस एंड दिस इज योर ग्लोबल स्टेप। सो इंटरनली वो खुद मैनेज करेगा, हम उसको बोल रहे हैं दिस इज द ग्लोबल स्टेप, यू आप उसको प्लस प्लस करते जाएगा। ओके, आप उसको ट्रेन नहीं करना है, आपको ट्रेन नहीं करना है, दैट्स अ स्टेप वैल्यू, दैट इज नथिंग बट अ स्टेप वैल्यू। सो दिस गाय विल रिटर्न अ ट्रेन अंडरस्कोर आउटपुट। ओके, मुझे ट्रेनिंग का आउटपुट देगा। सो दैट्स दैट। सो हमने यहाँ पे अगर लास्ट सेशन याद करें तो हमने सिर्फ ग्रेडियंट ऑप्टिमाइजर डेवलप किया था, एंड वी जस्ट कॉल ऑप्टिमाइजर डॉट मिनिमाइज लॉस। लर्निंग रेट इसको पास कर दिया था, लॉस फंक्शन को मुझे मिनिमाइज करना है। Guys, now finally evaluation को भी इग्नोर करते हैं, evaluation को इग्नोर करते हैं। Now the next one is nothing but a run training. Okay, so let me just run our data, that's that. Okay, हम लोग हमारा डेटा एग्जीक्यूट कर देते हैं, so that's nothing but a run training। जो भी अब तक हमने ग्राफ डेवलप किया था, let me just run that. Okay, so सबसे पहले मैं डेटा रीड कर लेते हैं। So last session में भी हमने डिस्कस किया था input underscore data dot actually read underscore data underscore sets dir, it's nothing but an our actually that's actually mnist hyphen, that's nothing but a folder name, it just return the data set, so you can say that mnist। अब ये mnist के अंदर क्या होगा, mnist मतलब datasets dot train dot dataset dot train dot labels dataset dot train dot actually images, in a similar way dataset dot test dot labels dataset dot test dot images। fine, so हमारे पास ट्रेनिंग टेस्टिंग दोनों चीजें होगी। Now let me do the next thing, जितने भी फंक्शंस हम लोगों ने बनाए उनको यूज करते हैं, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ग्राफ, टेंसरफ्लो का जो डिफॉल्ट ग्राफ है वो यूज कर रहा हूँ। ओके, डिफॉल्ट ग्राफ पैटर्न, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है, बट स्टिल डिफॉल्ट ग्राफ पैटर्न उसका यूज कर रहा है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही होता है। ओके, सो लेट मी जस्ट कॉल अवर प्लेस होल्डर अंडरस्कोर इनपुट फंक्शन,
which actually returns placeholder underscore input function will return two placeholders. One is for X, second is for Y. Okay, one is for images, second is for actually labels. Okay, X and Y. तो दो placeholder वो मुझे return करेगा. So let me store this placeholders in respectively images underscore placeholder, labels underscore placeholder. Now finally placeholder मुझे मिल गया. Now let me call this inference function. तो हम लोग actually hidden layers बना देते हैं. For that let me just write down images underscore placeholder. This value we will pass. It's a placeholder, so we will just provide the data. हम उसको feed करेंगे, value provide करेंगे. Okay, and hidden 1, hidden 2, so 128, 32. ये जो starting में हम variables बना चुके थे, तो पूरा एक ग्राफ बना देगा, एक layered ग्राफ बना देगा एक्टिवेशन फंक्शन वाला कि लाइक यहाँ पे W कैसे कैलकुलेट होगा, इसका एक्टिवेशन मतलब इंटीग्रेशन फंक्शन क्या होगा, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा, व्हाट अबाउट द सेकंड गाय, तो इसके लिए W क्या होगा, लाइक B क्या होगा, एक्टिवेशन इंटीग्रेशन फंक्शन, एंड हियर व्हाट अबाउट दिस W, that you consider W1, W2, W3, and what will be the output value. तो यहाँ से मुझे output value return. Fine. ये फंक्शन अगर देखना हो तो देख सकते हैं. Inference. So here it is. जिसमें images मतलब पहला placeholder पास किया. Hidden units मतलब hidden layer में कितने actually like neurons से वो पास कर दिए. So here we have actually weights. It's a variable. Bias. It's a variable. और यहाँ से ReLU that's an activation function and a matrix multiplication that is W into X plus B. ओके ये हम लोग लाइक इंटीग्रेशन फंक्शन यूज किया, हिडन 1 को हमने हिडन 2 के लिए यूज किया, हिडन 2 को एक्चुअली हम लोगों ने आउटपुट के लिए रिटर्न यूज किया एंड देन वी जस्ट रिटर्न द लॉजिक्स. दैट्स नथिंग बट अ प्रेडिक्टेड वैल्यू. दैट इज नथिंग बट अ प्रेडिक्टेड वैल्यू. सो ये मुझे प्रेडिक्टेड वैल्यू देगा. हियर इट इज, इट जस्ट रिटर्न अ प्रेडिक्टेड वैल्यू. नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? सर प्रेडिक्टेड वैल्यू मिल गई, सो आई वांट टू जस्ट कैलकुलेट द लॉस. सो लेट मी कॉल द लॉस फंक्शन जिसमें हम लोग प्रेडिक्टेड वैल्यू पास करेंगे एज वेल एज labels placeholder, that is the value of phi. So let me just go with this loss function. So here we have a loss function. What it returns? It returns an actual it just returns actually reduced mean cross entropy. Okay, so loss function इन दोनों का difference निकाल के आपको 1, 2 जो भी loss होगा, जितने percentage loss होगा, just return that. So this is my actual loss. Now after that, what is my requirement? Loss मुझे मिल गया, मुझे back propagation चाहिए, मतलब weights and bias की value मुझे train करनी है. Let me call the training function. जिसमें हम लोग loss and training rate पास कर देंगे, learning rate पास कर देंगे. What it does, उसके पास gradient optimizer होगा, वो पूरा का पूरा ट्रेन करके हम लोग को training underscore OP दे देगा. Fine, that's it. Train underscore OP. That's it. Our task is done. But what is my requirement? अब मुझे इसको evaluate करना. So what is the evaluate? So evaluation function अब देखते हैं, जिसमें हम logics दे रहे. What is that logics, guys? Logics का मतलब क्या? It is a predicted value. And what about this label underscore placeholder? That is our actual value. Loss function को जो arguments दिए थे, same arguments we are passing to evaluation. Okay, तो वो सिर्फ evaluate करेगा कि इसमें correction कितना है. Okay, correction कितना हुआ है. So let me just move to this evaluate. Okay, so what we are doing, evaluate function में मुझे करना था कि near about कौन सी value मैच हो. Okay, near about in the sense ऐसे like अगर मैं softmax apply करूँ, so मेरे 10 output आ रहे हैं. And guys हमने यहाँ पे hot one underscore hot equals to true use नहीं किया है. तो जब मैं कोई भी रिकॉर्ड यूज करूं तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? 3, 2 ऐसे कुछ एक्चुअल वैल्यू होगा. देन आई कंसीडर 5 एंड रिटर्न डिजिट से उसका आउटकम 5. एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू में मुझे आउट क्या मिलेगा? प्रेडिक्टेड वैल्यू में मुझे 10 डिफरेंट आउटपुट मिल रहे थे. तो इसके ऊपर मैं सॉफ्टमैक्स लगाऊंगा तो मुझे एक्चुअली एक सॉफ्टमैक्स अप्लाई करने पे मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देगा. ओके, दिस इज द नियरेस्ट वैल्यू. तो मुझे क्या करना था? जो भी नियरेस्ट वैल्यू मिले, जस्ट कंसीडर दैट. ओके, फॉर दैट what I am doing, here we have a function tf.nn.in_top_k. ओके, लॉजिस्टिक लेबल्स n1 जो भी पहला नियरेस्ट वैल्यू मिले, kth नियरेस्ट वैल्यू. ओके, kth नियरेस्ट वैल्यू लिख रहा हूं, पहला नियरेस्ट वैल्यू मिले, दैट इज माय करेक्ट आंसर. अब हम कास्ट कर रहे हैं, उसको हम टाइप कास्ट कर रहे हैं, रिड्यूस अंडरस्कोर सम करके उसको रिटर्न. ओके, एक से ज्यादा वैल्यू मिली देन यू हैव टू कंसीडर दैट. बट नियरेस्ट वैल्यू एक ही मिलेगी, यहाँ रिड्यूस अंडरस्कोर सम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कास्टिंग करके आप उसको भेज सकते हो. ओके, कास्टिंग करके भेज सकते हो. बट नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? हमने यहाँ पे बल्क ऑफ वैल्यूज भेजे, यहाँ पे बल्क ऑफ वैल्यूज भेजे. ओके, इन दोनों में बल्क ऑफ वैल्यूज भेजे, मतलब मैंने अगर बैच साइज 100 लिया तो पहले 100 वैल्यूज में कितने मैच हुए. बैच साइज अगर 500 लिया तो पहले 500 मैचेस में कितने सही मिले. इट इज द इवैल्यूएशन. ओके, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? एक्यूरेसी में काउंट कर पाऊंगा. फर्स्ट लेयर में कितना एक्यूरेसी था, सेकंड लेयर में कितना एक्यूरेसी था, थर्ड लेयर में कितना एक्यूरेसी था.
लेयर इन द सेंस फर्स्ट पास, नॉट द लेयर, सॉरी नॉट द लेयर, फर्स्ट पास में कितना एक्यूरेसी था, सेकंड पास में कितना एक्यूरेसी था, तो जितने मुझे यहाँ पे परफेक्ट नियर अबाउट वैल्यू मिलेंगे उनका सम अप करते जाएंगे, ओके उनका सम अप करते जाएंगे. So now evaluation will return the sum, single value just return. Okay, and now we will just use this error eval underscore correct, evaluation underscore correct we will use for actually division के total number of elements इतने हैं, उसमें से इतने elements सही मिले हैं. So eval underscore correct divided by batch size will just generate an actual ratio. Fine. So up to this I hope कोई problem नहीं है. Now अगर हमने ऊपर कुछ समरी में कुछ भी पुट किया, मतलब लॉग फाइल्स के अंदर ऐड करने के लिए अगर हमने पुट किया वो जितनी भी समरीज है, जैसा ऊपर हमने समरी में एक वेरिएबल यूज किया था दैट इज लॉस, तो जितने भी समरीज है उन सबको मर्ज ऑल मतलब एक साथ मैनेज कर रहे हैं. फाइनली वेरिएबल्स को डेटा पुट कर इनिशियलाइजर की जरूरत है, ग्लोबल इनिशियलाइजर की, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था. सो लेट मी कॉल लाइक init equal to tf dot global variable initializer and let me run this global variable initializer. So session equals to tf dot session in the bracket init. Now one more thing we required, sir log files चाहिए ना, कहाँ लिखेंगे log files, तो इसलिए हम लोग फाइल राइटर इन शॉर्ट एक्सट्रीम का ऑब्जेक्ट ओपन कर देते हैं, log डायरेक्ट ऊपर बनाया था दैट इज नथिंग बट logs एंड सेशन डॉट ग्राफ मतलब जैसे जैसे वर्क होता जाएगा ग्राफ का इवैल्यूएशन होने के बाद उसमें डेटा स्टोर करना है. ओके सो दैट्स माय समरी राइटर एंड सेवर इक्वल टू ट्रेन डॉट सेवर. ये ट्रेन डॉट सेवर इन द सेंस व्हाट, मुझे मॉडल भी सेव करना है, तो ट्रेन डॉट सेवर दैट मींस मैंने उसको सेवर के अंदर रख दिया. समरी अंडरस्कोर राइटर दैट इज माय स्ट्रीम हैविंग माय स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट, अब इनका यूज करके डेटा स्टोर करने वाला. फाइनली मैक्स स्टेप हमने कितने स्टोर किए थे गाइस, 5000 है ना, मैक्सिमम स्टेप्स 5000 लिए थे, 5000 बार मुझे लूप चलाना है. ओके सो व्हाट वी विल डू, लेट मी जस्ट लाइक स्टार्ट ओवर लूपिंग, और मैं यहाँ पे टाइमिंग भी ले रहा हूँ कि एक एक बार एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रहा है. तो स्टार्ट टाइम इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, then let me just run our model session dot run and train op and loss function. Okay, train op and loss इनको मुझे रन करना था एंड मुझे फिट डिक्शनरी के लिए हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर देंगे feed underscore dictionary is equal to feed underscore dictionary. तो वो feed underscore dictionary हमको कुछ रिटर्न करने वाला है. This function will return something. या इसको कहीं पे कॉल किया होगा, 1 मिनट, इसको कहीं तो कॉल किया होगा, फंक्शन का नाम चेंज है तो कहीं कॉल हुआ होगा ये. So here it is. Okay, sorry. Fill underscore feed underscore dictionary. So यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग डेटा पास करना है. Data set dot training placeholder and what is this? This is nothing but a placeholder. ये दोनों मेरे placeholders के नाम है. Okay, ये placeholder के नाम है. तो इसमें से डेटा लेना है, इसमें से batch size का डेटा लेना है, ये दोनों placeholder में डेटा फीड करना है. So it returns the dictionary. वो dictionary हम यहाँ यूज कर रहे हैं. And then after हम लोग end time consider कर लेंगे. We'll just consider the end time. This is the start time. This is the end time. So this is the end time time dot time minus time. So that is the duration. तो एक लूप चलने में कितना उसको ट्रेनिंग में टाइम लगा, सेकंड इटरेशन में कितना टाइम लग रहा है, थर्ड इटरेशन में कितना टाइम लग रहा है. सो दिस इज द पास. ओके, कितने पासेस चाहिए मुझे, 5000 स्टेप्स चाहिए. अब हर एक स्टेप में मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, हर एक स्टेप में डेटा स्टोर करना दैट्स नॉट थिंग. तो हम लोग क्या करेंगे, हम हर एक 100 स्टेप्स के बाद इवैल्यूएट करेंगे. Okay, right now just write down step and but of this percentage d, that's 100. So this is the loss value, and this is the duration. This is the loss value and this is the duration. Okay, now we will just store the data in a file. So what is that loss value guys? Loss value हम लोग को कहाँ से मिला? So here it just return the loss value. यहाँ से run हम लोग को loss value return कर देगा. Fine guys, and finally उसको print करते जाएंगे and data files के अंदर store करते जाएंगे. ओके, डेटा फाइल्स के अंदर स्टोर करते जाएंगे. उसमें हम लोग क्या चीजें स्टोर कर रहे हैं, एक तो समरी एंड दिस अवर फीड वैल्यू. ओके, सो समरी डॉट राइटर एड समरी स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमने दो चीजें रखी, एक तो समरी जिसके अंदर सबसे पहले हमारा लॉस था, ऊपर स्टार्टिंग में हमने सेट कर दिया था, एंड दिस इज अवर फीड वैल्यू मतलब ये हमारा एक्स और वाई है, एंड स्टेप वैल्यू दिस इज अवर ग्लोबल स्टेप और दिस इज अवर एक्चुअली इटरेशन वैल्यू. ओके, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे फ्लश आउट कर देते हैं तो डेटा फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगा. दैट्स दैट. व्हाट अबाउट दिस वन, इसको 2 मिनट के बाद देखते हैं, तब तक हम लोग एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं. सो लाइक स्टेप 0 लॉस, स्टेप 200 लॉस, स्टेप 300 लॉस, तो इतने जंप के बाद मुझे डेटा मिल रहा है इस पर. ओके, एंड दिस इज द टाइम.
इतने टाइम ड्यूरेशन पे वो कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट इग्नोर दिस ऑल. ओके, यहाँ पे 1 मिनट. ठीक है, अभी एक्चुअली अभी रन करते तो कुछ ठीक है, फाइन. सो नाउ मैंने आपको जैसे बताया था हमारे पास 3 टाइप का डेटा होगा, ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग. सो ये यहाँ पे सेट है कुछ ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग. सो अब डू इवैल्यूएशन जिसमें मैं सेशन पास करूंगा, इवैल्यूएट करेक्ट पास करेंगे. इस फंक्शन को अभी देखना बाकी है, अब देखेंगे इसको. सेशन वैल्यू पास करेंगे, इवैल्यूएट करेक्ट. इवैल्यूएट करेक्ट का मतलब क्या था? इवैल्यूएट करेक्ट मुझे क्या रिटर्न करके देगा? इवैल्यूएट करेक्ट फंक्शन क्या काम करके देगा गाइस? कि अगर मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू 500 में से, फर्स्ट 500 रिकॉर्ड्स में से कुछ प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी, कुछ एक्चुअल वैल्यूज थी, उन दोनों में क्या मिसमैच है उनका सम अप करके देगा. सो इवैल्यूएट करेक्ट, then images underscore placeholder, label underscore placeholder, and this is my training data set. So these both of these are nothing but a placeholders, and this is my training data set. Here I am just passing a validation data set, and here I am passing a testing data set. Okay, तो इस तरीके से हम डेटा पास करते हैं और do-eval फंक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं. What about this do-eval function? So this is our do-evaluation function. First value is session, evaluation value. Okay, कितने correct value हुई है? तो हम लोग गाइस यहाँ पे this is the true count in the sense like let this is nothing but a counter equals to 0. Okay, this both of these are nothing but a placeholder and this is the data set. क्या कौन से टाइप के डेटा सेट पे वर्क कर रहे हो? मतलब ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन. ओके, सो यहाँ पे मैंने true count equals to 0 लिखा. लेट वी कंसीडर कि हम ट्रेनिंग टाइम पे वर्क कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, स्टेप्स पर epoch. Epoch in the sense outer. Epoch in the sense you can say that outer loop. So steps per epoch, here it is actually number of examples divided by double divide in the sense actually this is the floor division divided by batch size. So data set dot num examples. Data set dot num examples. What it returns? Consider हमने 55,000 values लिए. Okay, so 55,000 divided by batch size. So batch size मेरे 100 थे. So it will be considered as 5,500. So that is nothing but a step per epoch. Steps per epoch, that will be the value. And what about the number of examples? The number of example वापस मैंने multiply किया कि मुझे integer value मिले, steps per epoch multiplied by batch size. So that is number of examples. So इसका कोई meaning नहीं generate होता, but number of examples. Now यहाँ पे हम loop चलाएंगे steps in the range of steps per epoch. So 5,500 times अगर मान लो steps per epoch की value 5,500 है, then step की value पहले क्या होगी? It will be actually the value of step will be 1, then 2, then 3, then 5,500 times loop चलेगा. तो हर एक टाइम हम बैच साइज के हिसाब से डेटा लेंगे. सो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं fill underscore feed underscore dictionary data set. तो that is a training data set जिसमें सब लोग ये प्लेस होल्डर की वैल्यू पास कर रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये हम लोग को क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न ए डिक्शनरी, सॉरी फीडिंग डिक्शनरी जस्ट रिटर्न. ओके, और उसमें आप एक बार फंक्शन देखिए वन सेकेंड. उसमें हम लोगों ने बैच साइज पास किए. तो पहले 100 डेटा सेट, देन 100 डेटा सेट, देन 100 डेटा सेट. तो 100 डेटा सेट के हिसाब से वर्क करेगा. So just return a feeding dictionary, and now let me just call this eval function and pass this feeding dictionary. Okay, so हम लोग को यहाँ पे कितनी करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी? तो जितनी भी करेक्ट वैल्यूज है उसको हम लोग काउंट करते जा रहे हैं. ओके, जितने भी करेक्ट वैल्यूज है उसको कैलकुलेट करते जाते हैं. सो नाउ ट्रेनिंग डेटा सेट में फर्स्ट पास में ट्रेनिंग डेटा सेट में कितने परसेंटेज वैल्यू सही मिली है? सो व्हाट आई विल डू, ट्रू काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जांपल्स. सो यहाँ मुझे प्रिसिशन मिल जाएगा. यहाँ मुझे प्रिसिशन मिल जाएगा. प्रिसिशन इन द सेंस व्हाट, कितने परसेंटेज वैल्यू सही है. ओके, सो हियर वी हैव अ वैल्यू. अगर लास्ट वाला स्टेप देखें, सो डू इवैल विद द ट्रेनिंग डेटा सेट, डू इवैल विद द वैलिडेशन डेटा सेट, डू इवैल विद द टेस्टिंग डेटा सेट. सो लाइक या फाइन, यहाँ पे पहले प्रिंट किया हुआ है ट्रेनिंग डेटा इवैल्यूएशन. So training data evaluation, itne steps complete हुए. Then it just say okay for number of examples 55,000 and this is the accuracy value. Okay, training के लिए accuracy 86%, validation के लिए actually 87%, testing के लिए almost 87%. Second pass में this was actually improved 86 to 89 and this 86 to 90. So that's quite good improvement. Third pass में so ये 99 to 90 and this 90 to 91.19. Okay, so like now up to how many pass you execute, that's up to you. Okay, कितने पास के लिए आपको वर्क करना है, that's up to you. आप कर सकते हो ये काम. So finally, अब आपको डेटा सेट अगर मॉडल को अगर स्टोर करना है, then you have to just write down one thing, that is आपका मॉडल जो भी स्टोर करना है. So मॉडल के लिए एक्चुअली एक्सटेंशन यूज होता है CKPT.
So model.ckpt log डायरेक्टरी में हम लोग इसको स्टोर करेंगे. तो पहले तो हम लोगों ने os.path.join एक path बनाया, and we just create a server object. Here we just create a server object, and using that server object we have to just call save session, and this is the location. This is the location and global stack. That's that. So your model will be stored. Model in the sense this session will store the graph. इस session के पास graph होगा. So that's that. And finally file के साथ connection close करने के लिए summary underscore write